ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਦੋਸਤੋ। ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮੋਬਾਜ਼ ਫਕੀਰੀ ਕਰੇ ਝੱਲਾ ਮਰੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ। ਗਾਲਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਔਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜੋਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਇਲਮ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੀਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਸਾ ਐਸਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਕੀਕੀ ਇਲਮ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ, ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੇਘਰੀ ਤੋਂ, ਬੇਕਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇhtiyਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮ ਤੱਕ ਰਸਾਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਔਰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਾਮਰੇਡ ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਲਾਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਰਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਔਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ। ਮਗਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਇਕਤਦਾਰ ਖੋ ਕੇ ਆਪ ਰਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਯਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕਸ ਐਂਗਲਸ ਮੁੰਤਖਬ ਤਸਾਨੀਫ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਦੇ ਇਕਤਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਅਗਰਚੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਲਈ ਖਾਤਰ ਖਾ ਖਿਦਮਾਤ
ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਸੁਣੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ ਆਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕਤਬਾਸ ਵੱਲ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ, ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, थोड़ा जिहा अनोखा भी लगेगा, मगर एक ज़रूरी चीज़ है। बनमानस से आदमी तक पहुँचने में मेहनत ने क्या खिदमत अंजाम दी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करते हैं। सियासी माशियात के माहिरीन इस पर जोर देते हैं कि मेहनत हर किस्म की दौलत का सरचश्मा है। पहला जुमला ही क्या खूबसूरत है। सियासी मुआशियात के माहिरीन इस पर जोर देते हैं कि मेहनत हर किस्म की दौलत का सरचश्मा है। वाकई ही भी ऐसा ही, वाकया ही है भी ऐसा ही। फितरत के बाद मेहनत का ही नंबर आता है कि फितरत वो सरो सामान मुहैया करती है जिसे मेहनत दौलत में ढाल लेती है, मगर इसके सिवा मेहनत गैर महदूद लिहाज से और भी बहुत कुछ है। तमाम इंसानी वजूद के लिए मेहनत एक बुनियादी और अव्वलीन शर्त है। इसकी बुनियादी अहमियत इस दर्जा है कि एक मानी में हम यहाँ तक कह सकते हैं कि मेहनत ने खुद इंसान को तख्लीक किया है। आज से लाखों साल पहले जब वो दौर आया था जिसका हम दो टोक तरीके से अभी तक तयन नहीं कर सकते हैं कि मेहनत ने खुद इंसान को तख्लीक किया है। आज से लाखों साल पहले जब वो दौर था जिसका हम दो टोक तरीके से अभी तक तयन नहीं कर सकते, ज़मीन की तारीख का वो दौर जिसे तबकातुल अर्ज़ वाले तीसरे जग का ज़माना कहते हैं, गालबन इसके ख़त्म होते वक्त इंसान से मिलते जुलते बन मानसों की कोई निहायत तरक्की याफ्ता नस्ल कहीं गर्म आबो हवा के इलाकों में आबाद थी। गालबन इस लंबे चौड़े बर्रे आज़म पर आबाद रही होगी जो बाद में बहरे हिंद में गरकाब हो गया। डार्विन ने हमारे इन असलाफ का लगभग नक्शा खींच दिया है। उनके जिस्म पर बाल ही बाल थे, दाढ़ियाँ थीं, उठे हुए कान थे और दरख्तों पर झुंड के झुंड रहा करते थे। क्यासन उनके रहन सहन के ढंग के सबब ऊपर चढ़ने में हाथों को पाँव की बनिस्बत मुख्तलिफ अमल करना पड़ा है। जब ये बनमांस हमवार ज़मीनों पर चलते तो हाथों की मदद से चलने की आदत से रफ्ता रफ्ता आज़ाद होते गए और उन्होंने खड़े कद से चलना शुरू कर दिया। यही फैसला कुन मरहला था बंदर से आदमी तक पहुंचने का। अभी तक जितनी किस्मों के भी बनमांस मिलते हैं वो सब सीधे खड़े हो सकते हैं और खड़े कद से चल फिर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त, और वो भी बेडोल तरीके से। इनकी कुदरती चाल कुछ खड़ी कुछ झुकी हुई होती है और इसमें हाथों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर तो ज़मीन पर बंद पंजा टेकते हैं और टांगें उचका कर अपने लंबे बाजुओं के दरमियान जिस्म झल्लाते हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लुंजे लोग बैसाखी के सहारे थिरकते हैं। मुख्तसरन 4 हाथ पांव पर चलने से लेकर दो पांव पर चलने के तरीके तक जितने मरहले दरमियान में गुजरे हैं, इन सब की कोई ना कोई झलक इंसान नुमा बंदरों में आज भी नजर आती है। लेकिन इनमें से हर एक के लिए खड़े कद की चाल सिर्फ एक मजबूरी का मामला है। हमारे इन असलाफ बनमानसों में ये खड़े कद की चाल पहले तो एक कायदा बने और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एक ज़रूरत बनती गई। चुनाचे
हाथ ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के दूसरे काम करने लगे। बनमानसों में आज भी हाथ और पाँव का जिस तरह इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ ना कुछ तखसीस मौजूद है। ऊपर चढ़ने में हाथ एक काम अंजाम देते हैं और पाँव दूसरा काम। हाथों से खास कर खुराक बटोरने और संभालने का काम उसी तरह लिया जाता है जैसे निचले दर्जे के दूध पिलाने वाले जानवर, मैमल्स, अगले पंजों से लेते हैं। बहुत से बनमांस हाथों का इस्तेमाल दरख्तों पर अपना ठिकाना बनाने में या टहनियों के दरमियान ऐसी छत लगाने में करते हैं जिसमें वो खुद को मौसम की सख्तियों से महफूज रख सकें। मिसाल के तौर पर चंपांजे बगैर दुम के बंदर यही करता है। हाथ में डंडा पकड़कर वो दुश्मन से अपना बचाव करते ही हैं और उन्हीं हाथों से दुश्मन पर फलों और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। जब आदमी उन्हें पकड़ कर रखता है तो वो आदमी की नकल में हाथों से छोटे मोटे कई काम लेने लगते हैं। यहीं से नजर आता है कि आदमी से सबसे ज्यादा मिलते जुलते बनमानसों के नापुख्ता हाथों में और इन इंसानी हाथों में कितना बड़ा फासला हायल है, जो लाखों साल की मेहनत से सुधर कर तरक्की करके इस दर्जे को पहुंचे हैं। दोनों हाथों में हड्डियों और उजलात की तादाद भी बराबर है और इनके जोड़ बंद भी एक से हैं। फिर भी सबसे पस्त सतह का वहशी अपने हाथों से सैकड़ों ऐसे छोटे मोटे काम कर लेता है कि बनमांस उनकी नकल नहीं कर पाता। किसी बनमांस ने अपने हाथों से पत्थर का एक खुरदरा सा चाकू भी नहीं बनाया। शुरू शुरू में हमारे इन असलाफ ने हजारों साल में बंदर से आदमी तक का फासला तय करते वक्त जिन कामों के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों का इस्तेमाल सीखा होगा, वो बड़े सीधे सादे काम रहे होंगे। सबसे पस्त सतह के ऐसे वहशी भी जिनके मुताल्लिक क्यास किया जा सकता है कि तनज़्ज़ुल के सबब जानवरों जैसी हालत के साथ साथ वो जिस्मानी इन्हितात से भी दो चार हैं। वो भी नुबूरी दौर की नीम इंसानी मखलूक के मुकाबले में कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। पहले पहल जब इंसानी हाथों ने सख्त पत्थर को चाकू में ढालने की तदबीर की होगी, उस वक्त तक इतना ज़माना गुजर गया होगा जिसके सामने हमारे इल्म में आया हुआ तमाम तारीखी ज़माना हेच मालूम होता है। मगर एक बार पत्थर का चाकू बना तो फैसला कुन कदम उठ गया, हाथ खुल गए और चाबक दफ्ती तो वक्त गुजरने के साथ बढ़नी ही थी। इस तरह जो लोच और लचक आती गई वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल भी होती गई, बढ़ती भी चली गई। अब देखिए तो हाथ सिर्फ मेहनत करने का एक उज़व नहीं बल्कि खुद मेहनत की ही पैदावार भी है। मेहनत ने नए नए कामों की साधन ने पुख्ता होते हुए उजलों और हड्डी बोटी के जोड़ों की और बड़ी मुद्दत में जाकर हड्डी की भी विरासत ने इस विरासत में पाई हुई नफासत के नए और ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा कामों के सिलसिले इस्तेमाल मुसलसल इस्तेमाल कामों के और ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा कामों के मुसलसल इस्तेमाल ने मिल मिलाकर इंसानी हाथ को कमाल के इस दर्जे पर पहुंचा दिया जहां वो मुसव्वर रफ़ाइल की तस्वीरें, बुत तराश थोरवाल्डसन के मुजस्समे और नामा निगार पगानिनी की मौसीकी वजूद में ला सके। मगर खुद हाथ का वजूद तन्हा नहीं था। हाथ तो बहुत ही मुरक्कब और कुल जानदार जिस्म का महज एक जुज़व थे। जिस शय से हाथ को फैज़ पहुंचा उसी से पूरे जिस्म को पहुंचा जो हाथ से खिदमत लेता था, और ये अमल दो तरह से था। दोस्तों, आज हम इतना ही सीखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। बोरियत से बचने के लिए हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में करके पढ़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।